Praise the Lord. Let's give a clap offering to the Lord Almighty. इस समय हम लोग प्रार्थना में जाए. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Blessed be your name, O God. Wonderful Jesus. Heavenly Father, we bow before your throne in Jesus' name. प्रभु जी, आज शाम हम धन्यवाद के साथ आपके पवित्र चरणों में आते प्रभु. यही प्रार्थना करते परमेश्वर, आपके पवित्र आत्मा की अभिषेकता, आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई ये सभा में परमेश्वर. ये प्रभु आज धन्यवाद के साथ विनती करते इस समय हमारा जो ये 2025 का प्रेज फेस्ट जिसका आज पहली रात्रि प्रभु, और ये जो 4 दिन का सभा परमेश्वर आज हम आपके पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु. यही विनती करते कि आपके सुंदर पवित्र आत्मा की अगुवाई और अभिषेकता ये सभा में, सांझ के सभाओं में, सुबह के सेमिनार्स में आपके बहुतायत की आशीष, अभिषेकता और अगुवाई रे प्रभु. हे परमेश्वर, यही विनती है कि इस सभाओं के द्वारा हम सब आपके और भी करीब आए. हम सब का जीवन, हमारा व्यक्तिगत रिश्ता आपके संग और मजबूत होए प्रभु. हम हर एक का जीवन एक वो भवन बन सके जिसमें आपके पवित्रता, आपके धार्मिकता राज करे प्रभु. और आज यही विनती है परमेश्वर, अपने सेवकों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा प्रभु, तो हर एक मन, हर एक हृदय, हर एक दिल और दिमाग में अपने कार्य को कर परमेश्वर. कि आज हम हर एक पहचाने प्रभु, जैसे तुम्हारे वचन कहता, दिन बुरा होता है, हम समय को पहचाने परमेश्वर, अपने आप को आपके और करीब लाए प्रभु, आपके सच्चाई में बनाए, आपके भय में, आपके पवित्रता में, आपकी सेवा के लिए. हे प्रभु, हर एक जितने आ जाए जो रास्ते में ये जो सप्ताह भर ये 4 दिन का सभा प्रभु आप ही के हाथ में देता, लोगों के जीवन में आपके महिमा होए परमेश्वर. Lord, as we come believing and expecting great things from you, O God, I pray, God, for your divine favor. I pray for your divine anointing, O God. Double portion of your anointing, O God. That as we'll praise, as we'll sing, as we'll worship, as we will magnify you, I pray that you'll pour out more of your Holy Spirit. Dear God, in this day and age, if we need anything more, we need more of you. We need more of your presence. We need more of your anointing. We need more of your fragrance in our lives, Lord. That wherever we go, whoever we may meet, oh God, may our lives be a testimony for the glory and the extension of your kingdom. Dear God, we just surrender everything. Everything, Lord. We surrender at your feet, oh God. Humbling ourselves, oh God. Humbling under your mighty hand, Lord. That in due time you lift your people high up, oh God. All for your glory, Father. Lord, I pray for your blessings. I pray for your anointing upon our musicians and the choir. I pray for your anointing upon the congregation. That as days go by, more and more shall come, Lord, and be blessed of you, Father. Dear God, we dedicate this Praise Fest 2025 into your blessed hand. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Dear God, let your divine sovereign will be done in our lives in this place, all for your glory. We give back all praise, glory, and honor to you, O God, and you alone. In Christ Jesus' wonderful and mighty name we pray. Amen. Amen. Praise God. You may be seated. आप बैठ सकते हैं. राज, मेरे लिए एक सौभाग्य है. It's my joy, my pleasure, my privilege to extend a warm welcome to all of you. आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं. हर एक कलीसिया जो हमारे सेंट्रल ईस्टर्न हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप का हर एक कलीसिया, हर एक पादरी को, सीनियर पास्टर्स, आपके लीडर्स, आपके मेम्बरान, आप सभी का जो मेहमान है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सभा में और जी ये प्रेज फेस्ट के लिए. सो प्रभु आप सभी को आशीष दे. क्यों नहीं हम एक दूसरे के लिए समय ताली को बजाएं. And again, this is my great joy and my great pleasure
to welcome our guests this evening, our guest speakers for the four nights rally and the 2-day seminar. And राज खुशी है कि हमारे साथ में रेवरेंड प्रदीप सैमुअल गुनार और सिस्टर विनीता गुनार लखनऊ इंडिया से हमारे बीच में है। और आज मैं उनके चर्चे, उनका जो बायोडाटा है उसको बताने चाहता हूँ। पादरी साहब का जन्म जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में और एक ऐसे परिवार से आते हैं जो मसीह के सेवकाई में लगे। They come from the pastoral family and his dad was a pastor and he's a minister of the gospel. And they were established by the Swedish Baptist and Pentecostal missionaries. और पादरी साहब का जो क्वालिफिकेशंस है BA and MA in sociology कानपुर यूनिवर्सिटी से, फिर ग्रेजुएट इन थियोलॉजी डिप्लोमा कोर्स जो Allahabad Bible Seminary से, and then he's got his bachelor's in theology and bachelor's in doctoral theology degree जो Serampore से university, and also जो शिक्षा teacher training from Lucknow University और honorary doctorate from Trinity College. Reverend Gunar is the founder and president, also the general secretary for the Association of Good Neighbors in India, और short में उसे कहते हैं Agni Ministries. He is also the director for Thomas Educational Christian Society, and presently he is doing non-denominational ministries, serving the Lord as an arm of his body, which is the church, by teaching and preaching the word of God, not only in words, but so much more in action. He's the senior pastor of Lighthouse Chapel in Lucknow, India, a beautiful chapel that they have made, and I thank God I had the privilege to be there and got an opportunity to minister in that chapel as well. He has preached the word of God in church revival crusades, leadership seminars, pastors' conference, family seminars, and he specialized meetings in India and abroad in many different nations. Also delivered specialized lectures in the universities and colleges in Philippines, Singapore, Japan, USA, and Holland and Sweden. Reverend Gunar has served the Lord as chief editor of a Christian Hindi magazine, Masih Awaz. And as gospel singer, and I'm sure you will get to hear him sing over these 4 nights, and who knows, even in the seminar, as a gospel singer with the Vishwa Vani radio broadcast for a couple of years. Also doing ministries by providing quality education in Christian environment to underprivileged children in the community through Thomas Academy High School, and providing assistance to the persecuted pastors and evangelists who are serving the Lord in remote areas with food, clothing, shelter, medicine, and ministry tools, etc., etc. And this I have witnessed with my own eyes, the work that they do in Lucknow, India, and other parts of India, and as they travel around. He speaks Hindi that we speak, as well as English. That's the two I know. Maybe there's others he would tell. He has completed 50 years in ministry life, and that 50 years was last year, 2024 in September. Now we'll look at Sister Gunar. Her qualification, she's got Bachelor in Science, Gorakhpur University, and Master in Science, Zoology, Allahabad University. She has got MA in Sociology and Bachelor in Education, that is Teachers Training, and then Certificate in Theology from Tangling Bible College in Singapore. Serves in ministry, serving the Lord as the principal of Thomas Academy Christian School, a beautiful school where a number of
In fact, quite a lot of students come who are underprivileged. And what a wonderful heart they both have to look after such children. Also preaching and teaching the Word of God in conferences, in seminars, mainly in women's programs in India and abroad. Also involved with children's ministry. She was one of the members of the national and international faculty of Haggai Institute of Leadership Training, and also does counseling and encouraging ministries with women and girls. You know, Reverend Gunnar and Sister Gunnar, they have two children, son Mayak, who is settled in Canada with his family, his wife Monica, Anisha, and they have a granddaughter. Then they have a daughter, Monica, who is settled in US with her family, and they have two girls. So they have three granddaughters. They currently reside at the Thomas Academy in Lucknow, Uttar Pradesh. I shall now call upon the ladies to come and garland our guests. We will also welcome the senior pastor of the host church and Sister Annie as well. Let's put our hands together once again. Praise God. Amen. And once again, welcome to everybody, those who walked in after I did the initial welcome. You know, we pray that we will all have a wonderful time in the presence of the Lord and the ministry of His Word and the power of the Holy Spirit. If you haven't been till now, let's become hungry and thirsty for more of God in our lives. That as the theme speaks, Lord, prepare me a sanctuary, holy and pure, tried and true. Amen? Lord, prepare me a sanctuary, pure and holy, tried and true, all for the glory of God. Praise God. I shall now call upon Pastor Ronald Ram to come, and we shall proceed further in our service. Praise the Lord. Amen. Shall we all rise up? Hallelujah. Just give a glory to God. Hallelujah. Just praise the Lord. Just give glory to God. Hallelujah. This is a very special moment. We came to the praise fest. One of the main key areas is to praise and pray. Amen. And to worship our Lord God. So definitely we are in this beautiful nation. Though we are little in number today, I just kindly request those who are sitting at the back or just on the left, come and sit in front, fill this place here, because we are standing in the sanctuary with the presence of the Lord here. Just worship the Lord. Amen. Just make a way to come in front, the pastors, leaders here. Hallelujah. Just a very special moment that we want to honor this time to our King, to our Savior, to the Lord, our prayer request for our nation, Fiji Island, where we live. This is a beautiful nation God has given, and beautiful people, different kinds of people, different background people, but we live in harmony and peace for the ages. We are almost 870,000 people living in Fiji, and about 50% they believe in Christ. Let's also pray for those who are not in Christ as well. Amen. Also, we pray for our nation. Shall we all just come together in a word of prayer? And as we're going to pray together, we believe
we take this our prayer petition to the Lord, our King, our Savior of this nation, Jesus Christ. Amen. Shall we all just come together as we're going to lead this special national anthem song, and we can put our hands on our chest together, honor the Lord. Hallelujah. Let's all give to the Lord in prayer. Let's all get in prayer for our nation. Those who are watching on live stream, those who are at home, those who are connected to this prayer, let's all pray for our nation. Our Lord of all nations, we lift up Fiji Islands to you. May every heart of these islands have a face-to-face encounter with Jesus Christ. A moment that changes their ways and draws them to your love. Let your generosity flow as freely as the ocean flows in this nation, that the needy may be blessed. Lord, teach them to love you and the neighbors with all the strength, and to forgive every wrong, no matter the depth of the things they are involved in. Lord, I pray also in agreement for the preservation of Fiji's natural beauty and the research that face the threat. May the stewards of the land you have given, let your light shine over Fiji, transforming every heart in your grace, Lord. Father, once again we come in the mighty name of Jesus. Bring our beloved nation Fiji under the shelter of the Almighty God. We pray your favor. Our nation will seek the Lord and enter the rest. As Isaiah 11:1 says, a shoot shall come from the stump of Jesse, and a branch shall grow of his roots. Lord, we pray for the next generation, that Lord, that they may follow the legacy, Father, the belief. Lord, we come together and pray in agreement, Lord, that we do not wrestle against the flesh and the blood, but against the powers and principalities, the rulers of the darkness of this world, and the spiritual wickedness in the high places. The scripture tells us, Lord, Luke 10:19, that you have given us authority to trample over serpents and scorpions. Lord, we take authority and come against every territorial spirits, every continental demon, spirits, all the satanic altars and lies. We come against every powers of darkness and all satanic worship and sacrifices. We break every adultery, slavery, fornications, suicides and murders, drugs and rapes and incest, every system of bribery, corruption and nepotism. In Jesus' name, we bind and resist, rebuke and bring naughty every powers of aggression, evil intentions, evil
plots and dangers and destruction against our nation and the people of Fiji. Heavenly Father, we ask you, Lord, send your mighty warnings and guidance and angels to protect, expose, and remove every assignment of the scheme that's against this islands of Fiji. Lord, we ask you to remove every wickedness in the high places, every corruption, greed, and confusion, every device of the enemies, and ask the Lord, arise and defend, avenge and vindict our nation, because we put our trust in you. Override and interrupt and overturn every evil predictions of the wicked against the people of the nation. Lord, we pray tonight the President, Prime Minister, and all the leaders, civil servants, Army, Navy, police and officers in power to make decisions for our nations. Lord, we pray our leaders to be led by, guided by you, Lord. The wisdom and the knowledge, counsel and the discernment and the fear of Almighty God. Lord, we pray you are peaceful of the office of the people have been elected in the position who will defend and uphold the Constitution. Office are elected to do so, Lord. Father, in the name of Jesus, bless our nations with abundance of heavenly and earthly supplies of food, resources and minerals from the ground and sea. Fill the ocean with the sea and the life. Bless our crops. Bless our hardworking farmers, fishermen. Bless our economy. Bless businessmen, agriculture. Lord, we pray for the climate change issues. Help us to maintain and take good care of our beautiful Fiji. Lord, we pray for our students from preschool to university. We speak grace upon all the students that they may lead by the Spirit of the Lord. We pray, underprivileged, that your grace and mercy be upon them. Let your name be exalted in heaven and earth upon our people of our nation. Father, let every household receive salvation, grace, favor, peace, and abundance of thy truth. Father, we declare this is the day, tonight, in the year of the divine manifestation of your glory, that we will see the full effect of your decreed counsel in the nations, political, economical, health, and social affairs in Jesus' name. Lord, we commit this nation, Fiji, the people, and all into the hands for the blessing and the protection in a remarkable and supernatural way. We thank you, Lord, that you heard our prayers and our requests and supplication tonight. Mighty God, protect our churches. Bring forth a great revival through this land and bless our neighbors around us, Lord. Thank you, Lord, for being our refuge and sovereign God, a very present help in the time of need. In Jesus' name we pray. And every saint say, amen and amen. Give a praise offering to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Oh, Father, we thank you. We praise you, Lord Jesus. As we remain standing, this honor to, as God has blessed this nation, blessed everything, climate change, blessed this, His favor, the weather today we experience. Hallelujah. Give another praise to God. We are blessed to be here in this sanctuary. Even those who are watching live stream at home. This is a praise fest to praise our God. Hallelujah. Shall we prepare our hearts to give to the Lord? And I am an acting treasurer. I don't ask you to only give the praise. I ask you to give what you have in our wallet. So before you sit down, please take your wallet and take your money out of your hand, and I'll pray before I take a seat and Coil continue to pray. I ask ushers to come in front and just take your best seat. You know, the Bible says in Luke chapter 6:38, give and shall be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, running over, and I'll put it in your lap, in your bosom. For the measure you give shall be given back to you. You want to see blessings or breakthrough? I have a living testimony.
A man who always collect money, we miss him tonight. Late Brother Reginald. We remember him. But I stand today as a treasurer, and I believe we will meet our budget. It's in your hand. You're about to release. Hallelujah. Shall we pray? Heavenly Father, in your presence, as your children, Lord, cheerfully, prepared heart to receive, Lord, what you have in store through your servants to give, to bless our life, Lord, tonight. And with the heart of abundance, Lord, we want to give it for your kingdom. Bless every cheerful givers, Lord. Increase their, Lord, in the giving. Increase in every area of lack, Lord Jesus. Thank you, Father, once again. I give you glory, I give you honor, I give you praise. In Jesus' name. And every saint say, Amen, amen. You may sit down. Ushers will collect and choir will lead into the songs. Hallelujah. स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। Come on, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। परमेश्वर योग्य है, आमेन। हर प्रशंसा, हर स्तुति सिर्फ परमेश्वर के लिए, आमेन। If you believe that God is going to do something, come on, stand up. Come on, खड़े हो जाए हम सब। आज हम लोग शांति नहीं रहेगा। जब हम लोग परमेश्वर में घर में रहता है, हम लोग शांत नहीं रहे। We must dance, we must praise, we must lift up the name of Jesus higher than any other name, amen। आज कुछ डिफरेंट होने वाला है, आमीन। आज कुछ अलग होने वाला है। कम ऑन, अपना नेबर कहे कि something good is going to happen. Come on, say to your neighbor, something good is going to happen. Hallelujah, something good is going to happen. Hallelujah. When we declare that, हम लोग के कौन जाने, हम लोग के आज our words has the power, amen। हम के जबान में ताकत रहता है, आमीन। जब हम लोग कहता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो कुछ अच्छा ही होगा, आमीन। और सिर्फ अच्छा होगा जब हम लोग परमेश्वर में रहते हैं, बना रहते हैं, आमीन। आज हम लोग स्तुति प्रशंसा करेंगे उसको। हालेलुया। हम सब ताली बजाएं।
धन्यवाद देता है प्रभु। हालेलुया। ओ यीशु, प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे बड़ा है। एक बार प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे। क्या कहते? मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम्हें पाओगे। कलकत्ता बोलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुमसे अभी। कलकत्ता बोलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुमसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे सबसे बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो चाहे सबसे बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। क्या? प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जी की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जी की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा। एक बार प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है। सिर्फ प्रार्थना करने से आज छुटकारा। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे बड़ा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, सबसे बड़ा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए। ओ छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा। सिर्फ यीशु में छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। सिर्फ यीशु में छुटकारा है। आज धन्यवाद है यीशु के आज। ओ हालेलुया। यीशु, 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 come in your presence, Lord Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, lift up the name of Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, you're wonderful, oh God. You're sovereign God, you're the King, you're the Maker, oh God. You are the living God we serve, oh Jesus. Oh, Yeshu, Yeshu, we surrender to you tonight, oh God. बन के स्तुति आया हूँ मैं,
जान देकर प्यार ये ऐसा तूने मुझसे किया, भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह में, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया, क्रूस पर जान देकर मुझको पहचान देकर प्यार ये ऐसा तूने मुझसे किया, भूलूंगा ना कभी मैं तुझसे ही हूँ मसीह में, जीवन ये मेरा तुझे अर्पण कर दिया, बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु, तुझ में ही मैं हूँ, मुझ में ही तू है, मेरा जहाँ है बस तू ही, बस तू ही, ऐसी सितारिश बन जाऊं तेरी, तुझको कबूल हो मेरी जिंदगी, तुझ में ही मैं हूँ, मुझ में ही तू है, मेरा जहाँ है बस तू ही, बस तू ही, ऐसी सितारिश बन जाऊं तेरी, तुझको कबूल हो मेरी जिंदगी, मेरा दिल प्रभु तेरा घर बने और मुझ में रहे बस तू ही, बन के स्तुति आया हूँ मैं तेरे पास प्रभु, हो कबूल तुझको मेरी हर सांस यीशु, एक माटी सा तेरे हाथों में सौंपता खुद को मैं हूँ, हाँ प्रभु, मर्जी हो जैसी तेरी प्रभु जी, मुझ में हो ऐसा हाजिर मैं हूँ, एक माटी सा तेरे हाथों में सौंपता खुद को मैं हूँ, हाँ प्रभु,
तुझे आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर. Come on, lift up the name of Jesus. धन्यवाद दे प्रभु का, धन्यवाद दे. Come on. This is a praise fest. We're gonna praise Jesus. We're gonna worship Jesus. Come on, lift up your hands to the heavens and say, God, that I'm here today. I'm going to receive you, Jesus. I surrender to you, my God. Oh, Yeshu, Yeshu. Oh, hallelujah. Come on, lift up your voices to heavens. Lift your voices to heavens. This is a time that God says that He needs you.
है। यीशु का नाम, उस नाम से बढ़कर कोई दूसरा नाम नहीं। आप चाहे कितना नाम ले लो, सिर्फ यीशु है जो हमें हमारे मन की तमन्नाओं को पूरा करता है, पापों को क्षमा करता है, नया जीवन देता है। वो एक नाम याद रखना, हालेलुया। आप सब बैठ जाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों को इस समय निमंत्रण देता हूँ और खुश हूँ कि आप आए हो और परमेश्वर के आशीष ऊपर आपके ऊपर रहें। हमारा जो प्रचारक है उसके विषय में आपको बता दिया गया है, काफ़ी लंबा चौड़ा, और शायद हम लोग और जानना चाहेंगे तो उससे मिलेंगे, लेकिन हम लोग खुश हैं कि वो हमारे साथ में आज है। और कई पहले भी एक दो बार वो यहाँ पर आया फिजी में। हम उनको आदर करते हैं, मान करते हैं। वी आर सो डिलाइटेड दैट ही इज विद अस टुडे। हिज introduction was given, but at this moment I take the privilege of inviting him to come and take the pulpit and minister to us what the Lord has laid upon your heart. हम बहुत ही खुश हैं और मैं इसको निमंत्रण देता हूँ कि वो आए और अपने दिल में जो कुछ है प्रचार करने के लिए वो प्रचार करें, और हम अपने बाकी सब ख्यालों को दूर करके अपने ध्यान को परमेश्वर पर रखें और इस सेवक, परमेश्वर का सेवक जो इस समय हमारे सामने है। Praise the Lord. Praise the Lord. Are you happy? Sure. Okay, that's good. It's a great privilege for me again to come in the sanctuary in beautiful place and let's worship the Lord with all of you. And I thank Pastor, especially Senior Pastor, who's a great encouragement to us. Whether I am in India or in Fiji, he's always an encouragement. And whenever I call, he always say, I'm praying for you. And that is a big encouragement. परमेश्वर का धन्यवाद हो ऐसे बुजुर्गों के लिए, ऐसे पासवानों के लिए. And I tell you, the church, this church and all of you, that is a blessing to have such pastor, the man of God and the women of God, and we really thank God for that. बाइबल में लिखा हुआ है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है. और कई बार हम सोचते हैं कि हमारे सीनियर अब तो आउटडेटेड हो गए है ना, तो हम उनको ही बोलते हैं कि आप लोग फेसबुक वाले हो, हम तो फेस टू फेस वाले हैं, है कि नहीं? जो सीनियर लोग हैं, हम लोग फेस टू फेस वाले हैं. So we really thank God for Pastor, and I thank you for welcoming me in your place and giving me this pulpit. It's a great honor for me and for my wife. And I thank Pastor Ami for inviting me and all the pastors here and the congregation that you have invited us once again to share what God has taught us. It is not my word, but it's the word of God. What God has taught me, I just want to share with you so that if I am blessed, then you will be also blessed. Amen? Praise the Lord. As I know that this praise festival has a special song. It's not the song, but the first word which has been taken from his song, God make me a sanctuary, build me a sanctuary. Holy. परमेश्वर मुझको एक ऐसा sanctuary बना जो पवित्र हो. और when Pastor Ami shared with me that this is the main theme of this festival, this program, I tried to find out in Hindi. So I don't know whether you can show it here. And let us sing this song. I want to sing this song for you. प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान
धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। और उसके बाद है, मैं धन्यवाद के साथ मानकर तेरी बात जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। Let's try to sing this song. हम लोग आने की कोशिश करेंगे, हिंदी में इसे सीखेंगे और इसे प्रेयर। ये this is not just a song. This song has really blessed me in my life. When we say, Lord, I want to live for you. Make me a sanctuary so that I can live for you. A holy life, a pure life. प्रभु मुझको बना तू अपना पवित्र स्थान, धोकर शुद्ध कर तू अपने लहू से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, मैं जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। When you are singing this song, are you really singing with meaning? This is a prayer. And when you are singing, you just say, मैं जीऊंगा सदा. I will live for you, Lord. And I think this is the time, this is a festival time, this praise and worship festival time is the time when we can promise the Lord, Lord, I want to live for you. Make me a sanctuary, pure. Make me a sanctuary according to your will, so that I can live for you. परमेश्वर तू मुझे अपने समान बना, अपने समान पवित्र बना, ताकि मैं तेरे लिए जी सकूं। आमेन। Praise the Lord. प्रभु मुझको है ध्यान तेरे अनुग्रह का, छूकर भर मुझे अपनी सामर्थ से। मैं धन्यवाद के साथ मान कर तेरी बात जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए, जीऊंगा सदा मैं तेरे लिए। Yes, Lord, I want to live for you. And tonight, I promise, Lord, as we have sang, make me a sanctuary, make me holy, Lord. तू मुझे पवित्र बना परमेश्वर, तू मुझे शुद्ध कर, तू मेरे जीवन को शुद्ध कर, मेरी बोली को शुद्ध कर, मेरी सोच को शुद्ध कर, ताकि मेरे जीवन तेरी महिमा के लिए हो। मैं तेरी महिमा के लिए जीऊं प्रभु, तेरी सेवा करूं। चाहे मैं एक डॉक्टर हूं, चाहे मैं एक नर्स हूं, चाहे मैं एक टीचर हूं, चाहे मैं एक पादरी हूं, चाहे मैं एक प्रचारक हूं, चाहे मैं एक सिंगर हूं, चाहे मैं स्टूडेंट हूं,
चाहे मैं एक बिजनेसमैन हूँ, चाहे मैं किसी भी जॉब में हूँ, प्रभु आई वॉन्ट टू लिव फॉर यू. मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ. थैंक यू लॉर्ड. इन 4 दिनों में प्रभु हमें ऐसा बना, प्रभु हमें ऐसा शुद्ध और पवित्र कर. मेक मी होली लॉर्ड इन दिस 4 days, so that when we go back home, Lord, even tonight, Lord, I want to examine my life, my faith. I want to say, Lord, I want to live for you. I want to live for you. Make me a sanctuary acceptable to you, Lord. मुझे ऐसा सेंचुरी बना, ऐसा पवित्र स्थान बना जो मैं तेरे काम आऊं प्रभु. हर जगह, हर समय अपने वचन को समझने और समझाने के लिए पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आमीन. आमीन. परमेश्वर का धन्यवाद हो और आप सबका हम स्वागत करते हैं आज के इस विशेष दिन में. परमेश्वर धन्यवाद हो इस फेस्टिवल के लिए, इस समय के लिए जो प्रभु ने मुझको और आपको दिया. और ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है क्योंकि फिजी देश मेरे लिए एक दूसरा घर है. इट्स लाइक ए सेकेंड होम फॉर मी. मैं बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसा देश है जिसमें आकर के मैं ये नहीं फील करता कि मैं बाहर हूँ. मुझे लगता है मैं इंडिया के ही किसी जगह में हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी हम लोग से मिलते हैं, जिनसे बातचीत करते हैं, जो बोली बोलते हैं, जो भोजन करते हैं, सब ऐसे ही है जैसा हम इंडिया में भी करते हैं. तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु एक बार फिर से मुझे यहाँ लाया, और न केवल मुझे लेकिन मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई. और मेरा विश्वास है कि आने वाले ये 4 days, ये 4 दिन परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा. जो कुछ प्रभु ने हमें सिखाया है हम उसको आपके साथ बांटना चाहते हैं. हम नहीं जानते, शायद ये मेरे लिए आखिरी मौका हो फिजी आने का, या फिर से प्रभु लाएगा, ज़रूर आएंगे. लेकिन जो भी दिन प्रभु हमें देता है, जो भी दिन प्रभु ने हमें समय दिया है, अपॉर्चुनिटी दिया है, हम उसको चाहते हैं कि प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो. हालेलुया. केवल प्रभु की महिमा हो. ग्लोरी टू गॉड. वी जस्ट वांट टू यूज एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी टाइम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. आई डोंट नो अबाउट फ्यूचर, बट आई नो वन हु होल्ड्स माय फ्यूचर. ही नोज माय फ्यूचर, राइट? ही नोज माय फ्यूचर. सो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो. आई वॉज प्रेइंग व्हेन आई वॉज इनवाइटेड बाय पास्टर आमी and Pastor Philip, and I was just praying, Lord, give me the message. If one word I should use in every time, in every message, and God gave me that word, faith, विश्वास. मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर हमें दे कि हम किस बात पर जोर दें. वैसे तो बहुत सी बात है जो हम शेयर करेंगे, लेकिन एक विशेष वर्ड पर हम ज़्यादा जोर देंगे, और वो है विश्वास. क्योंकि ये वी आर लिविंग इन द लास्ट ऑफ द लास्ट डेज. हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो अंतिम समय का अंतिम समय है, जब एकदम प्रभु यीशु मसीह आने वाला है. और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जो सबसे खास ज़रूरत है आज हमारे चर्च में, हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे फैमिली में, हमारे कलीसिया में, वो है फेथ, विश्वास. अब वो समय नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन, वो समय नहीं कि हम मस्टर्ड सीड पर जिए. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जस्ट इफ यू हैव दैट फेथ लाइक मस्टर्ड सीड, यू टेल दिस माउंटेन गो इन द सी. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर मस्टर्ड सीड जैसा विश्वास हो, और तुम इससे बोलो ये पहाड़ से समुंदर में चला जाएगा. सच्चाई है, बाइबल में लिखा है. लेकिन अब टाइम आ गया है, एंड आई थिंक दिस इज अ प्रॉफिटिकल वर्ड फॉर द चर्च. द टाइम हैज कम, वी शुड थिंक ए बिग फॉर द बिग फेथ. आज समय आ गया हम बड़े विश्वास के बारे में सोचें. वो मस्टर्ड सीड जो फेथ था, वो प्रभु यीशु मसीह ने उनको दिया जिनका कोई फेथ नहीं था.
उनके लिए बोला जिनके पास इतना सा भी फेथ नहीं था। लेकिन हम और आप जो विश्वासी कहलाते हैं, हम और आप जो अपने आप को बिलीवर बोलते हैं, नाउ गॉड, पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, इवन गॉड वांट्स टू सी द बिग फेथ इन अस। आज परमेश्वर हमारे जीवन में एक बड़ा विश्वास देखना चाहता है, कम से कम फुटबॉल के बराबर तो विश्वास हो ना, ताकि दूर से दिखाई दे, है कि नहीं? हम लोग तो इतना बड़ा विश्वास लेके घूमता है कि दूर में दिखाई भी नहीं देता, है कि ना? यहाँ भाई बैठा है, उसको भी नहीं दिखाई देगा कि इतना बड़ा विश्वास। दैट्स व्हाई आई वांट टू इंक्रीज योर फेथ इन दिस 4 days। हम चाहते हैं आपका विश्वास बढ़े, प्रभु यीशु मसीह में और विश्वास बढ़े, ताकि प्रभु जब भी तुम्हें देखे कहीं इसके अंदर बड़ा विश्वास है। एंड आई एम सरप्राइज व्हेन आई रीड इन द बाइबल, जब प्रभु बोला कि मस्टर्ड सीड का जब एग्जाम्पल दिया, उसके बाद प्रभु जी कहीं नहीं बोला कि ये के अंदर जो रहा, इसके अंदर जो मस्टर्ड सीड विश्वास रहा तो ये कनानी लेडी जो थी इसकी बेटी चंगी हो गई। नहीं बोला, बोला इसके अंदर बड़ा विश्वास है, ये बड़ा विश्वास है। आज के भाषा में बोले तो गैर मसीही थी, है ना, यहूदी नहीं थी, कनानी थी, कैनानाइट लेडी। शी केम टू जीसस क्राइस्ट, प्रभु मेरी बेटी बीमार है, दुष्ट आत्मा सता रही, तू उसको ठीक कर दे। और जब प्रभु उसके विश्वास को देखे तो बोले इसके अंदर बड़ा विश्वास है। एक सेंचुरियन है यीशु मसीह के पास, कह लगा यीशु मसीह से, मेरा सेवक बीमार है, माई सर्वेंट इज नॉट वेल, ही सिक। बेटा भी नहीं रहा, बेटी भी नहीं रही, उसका सर्वेंट बीमार रहा ना उसका तो नौकर बीमार रहा, सीरियस रहा। प्रभु जी बोले चल हम आते हैं। नहीं ना प्रभु, आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, यहीं से बोल दो ठीक हो जाएगा। और तब प्रभु यीशु मसीह का जा, तेरा विश्वास, तेरा नौकर चंगा हो गया। और बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह बोले इसका विश्वास बड़ा है। एवरी टाइम जीसस सेड हिज फेथ इज बिग, हर फेथ इज बिग। क्या आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में, आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे चर्च में देख करके बोल सकता है ये चर्च का विश्वास बड़ा है। आमीन। इनका विश्वास कितना बड़ा है, और इसलिए आज इस बड़े विश्वास की जरूरत है। और इसलिए आज मैं आपके साथ विश्वास के बारे में शेयर करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, इवन पहले भी हम देखते हैं बहुत सी बातें हुई जो विश्वास के बारे में होती हैं। जब इस्राएली लोग निकाले गए मिस्र देश की गुलामी से, जहाँ वो मिस्र देश इजिप्ट के स्लेव्स थे, जब उनको निकाला गया तो रास्ते में चलते गए, लिखा हुआ जंगल जंगल होते हुए चलते गए। एक छोटा सफर को एक लंबा सफर उन्होंने तय किया था, तो बहुत शॉर्टकट, लेकिन उनको बहुत टाइम लग गया, 40 years। और एक समय ऐसी जगह में पहुंचे जहां पीछे भी परेशानी और आगे भी परेशानी, है ना। पीछे फिरौन का सेना आ रही है, उसकी आर्मी आ रही है, और आगे लाल समुंदर है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। बाइबल ये बताती 430 years वो बॉन्डेज में थे। दे वर इन बॉन्डेज ऑफ इजिप्ट फॉर 430 years। अतः पर मूसा की अगुवाई में उनको निकाला, एंड देयर वर 2 million people। छोटा मोटा नहीं था, दैट वाज द बिगेस्ट चर्च जिसका पादरी जो था वो मोजेस था। मोजेस वाज द पास्टर प्रीस्ट ऑफ द लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड। 2 million लोग थे उसमें। अब बाइबल ये बताती जब वो पहुंचे, चलते गए चलते गए चलते गए। अच्छा होगा हम लोग बाइबल में से पढ़ेंगे एक्सोडस। अगर आपके पास बाइबल है, यू जस्ट टर्न विथ मी एक्सोडस चैप्टर 14। एक्सोडस चैप्टर 14, और उसका लिखा हुआ जब वो पहुंचे उस जगह में जहां आगे भी प्रॉब्लम, पीछे भी प्रॉब्लम। आगे तो लाल समुंदर है, समुंदर को कैसे पार करें, कोई शिप भी नहीं है वहाँ, कोई ब्रिज भी नहीं है, कैसे जाएंगे। अब पीछे फिरौन की सेना आ रही है। तो वहाँ पर लिखा 13 वर्ष देखिए, वहाँ लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े रहो।
वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। That is faith. यही विश्वास है। खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो, देखो, डोंट मूव। तुम्हें इधर उधर भागे की जरूरत नहीं है। खड़े हो जाओ और देखो परमेश्वर तुम्हारे उद्धार का काम करेगा। और आगे लिखा है, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। हालेलुया। जो प्रॉब्लम तुम आज देखते हो वो प्रॉब्लम फिर तुम कभी नहीं देखोगे। आमीन। That is faith. The problem you see today, you will not see it when you will just stand still. जब एकदम खड़े हो जाओ चुपचाप, and just trust the Lord. Have faith in God. जब परमेश्वर पर तुम विश्वास रखोगे, परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा। और यही हुआ बाइबल में हम पढ़ते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ आगे भी जो हम पढ़े उसके 14th वर्ष में, वहाँ लिखा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। The Lord will fight for you and you have only to be silent. Problem with us is whenever we have any problem, there is no one in this world who can say, I don't have any problem. If anybody will come and tell me, I don't have any problem, Pastor, I will say, your no problem is the greatest problem. Your no problem is the greatest problem. Everyone has problem. But what the Bible say, chupchap raho, silent. Don't run here and then, khade ho jao. Stand still. And I tell you, the Lord taught me this. Many times what happens when problem comes, we try to run here and there. We make so much shout. यहाँ जाए तब भी वहाँ अपने प्रॉब्लम बताओ, उसके पास भी प्रॉब्लम बताए। अब बेचारा पादरी के पास तो 10 बार जाके प्रॉब्लम बताया ना। पादरी भी दुखी हो जाता, कहता है भैया हमारा अपना प्रॉब्लम है, अब तुम अपना प्रॉब्लम और ले आया, है कि नहीं? It happens many times. Whenever problem comes, we shout too much. We run here and there. इंडिया में तो बहुत हो, यहाँ भागे वहाँ भागे। मसीही लोग भागते हैं, वो गैर मसीही को छोड़ दो, उन लोगों को छोड़ दो जो प्रभु को नहीं जाने। लेकिन मसीही लोग जो है यहाँ वहाँ भागते हैं। यहाँ चल जाओ, थोड़ा मोमबत्ती जलाओ, कैंडल जला दो, है ना। वहाँ चल जाओ, थोड़ा माथा टेको, दुआ कर ले। वो पादरी के पास चल जाओ, तू मेरे लिए प्रार्थना करेगा, तुम्हारा प्रॉब्लम से छुटकारा हो जाएगा। वो जगह चले जाओ, वहाँ जा करके दान पुण्य कर दो, थोड़ा गरीब लोगों को खाना खिला दो, तुम्हारा प्रॉब्लम से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। नहीं मिल सकता if you run here and there. And I tell you, if you are facing any problem today, this is the word of God. It's saying, chupchap ho ja. Be silent. Don't run here and there. खड़े हो जाओ चुपचाप वहां पे। फिरौन की सेना आ रही है पीछे से। The army of Pharaoh is coming. But see what Lord is going to do. And tonight I tell you, if you have any problem, you came in this sanctuary with any big problem. अगर तुम कोई समस्या लेके यहाँ आए हो, कोई प्रॉब्लम लेके आओ जिसे तुम छूट नहीं पा रहे हो, tonight just say, Lord, हम बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, यहाँ गया वहाँ गया, ये किया वो क्या, बहुत चिल्ला लिए तुम्हारे सामने, लोगों के सामने बहुत चिल्ला लिए, यहाँ जाके बोल दिए, वहाँ जाके अपना प्रॉब्लम बोल दिया, वहाँ बोल दिए, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। बट टुनाइट बाय फेथ, विश्वास के साथ, आई एम कमिंग टू यू, आई वॉन्ट टू बी साइलेंट, मैं चुपचाप रहूंगा। मोसेस वॉज ऑल्सो वेरी स्ट्रेंज पर्सन ना। वो पहले तो बोल दिया, जब इस्राएली लोगों को बोल दिया तुम चुपचाप खड़े हो जाओ, इधर तो भागना मत, डरे की जरूरत नहीं, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, भागो मत, डोंट फियर, डोंट रन हियर एंड देयर, सी व्हाट गॉड इज गोइंग टू डू। अच्छा, उनको बोल दिया तब जाकर के परमेश्वर के पास गया, परमेश्वर हम तो बोल दिए, अब तुम जानो। दैट वाज फेथ। पहले परमेश्वर के पास नहीं गया, परमेश्वर व्हाट टू डू, क्या करें, अब हम बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, इधर समुंदर है, इधर तो आर्मी है,
कहाँ जाए हम लोग? नहीं, Moses knew that God will do something. He's a mighty God. He's a mighty God. In New Testament also we read something about this incident. Hebrew chapter, if you turn with me, Hebrew chapter 11. Book of Hebrew chapter 11 and verse 29. And it says, विश्वासी से लाल समुंदर के पार ऐसे उतर गए. By faith they passed through the Red Sea. लिखा जैसे सूखी भूमि पर से, as dry land. Whereas the Egyptian attempting to do so were drowned. जबकि मिस्रियों ने वैसा ही करना चाहा तो सब डूब मरे, खत्म हो गए. विश्वास से, only by faith. पहले तो परमेश्वर बोला, मूसा बोला खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहना, हल्ला मत करना. उसके बाद क्या हुआ? समुंदर दो भाग हो गया. जब समुंदर दो भाग हो गया, सूखी भूमि हो गई, ड्राई लैंड आ गया, तो बाइबल से सब लोग उसमें उतर गए. 2 million people, 20 लाख लोग थे. 2 million people चले जा रहे हैं, चले गए उस पार. You know what was that? In Bible we read about several type of baptism. And this is called the baptism of Moses. Baptism हम जानते हैं, हम लोग सबका baptism हुआ है ना. पानी में हम पवित्र आत्मा, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से पास्टर ने हमको baptism दिया. हम उस पानी में डुबाए गए, गाड़े गए, जो जिस बाइबल कहती है, और फिर उसके बाद प्रभु के साथ एक नई सृष्टि में जी उठे. इस्राएली लोग का भी बैप्टिज्म हुआ और वो जरूरी था. इट वॉज अंडर द प्लान ऑफ गॉड. जब वो लाल समुंदर में जा रहे हैं, लिखा हुआ है चारों ओर पानी, इधर भी पानी, उधर भी पानी, नीचे भी पानी, और पानी सूखी भूमि थी लेकिन वो पानी में ही थे, और ऊपर भी पानी, चारों ओर से पानी. दैट वॉज द बैप्टिज्म ऑफ दिस इजराइट्स. That was must. वो जरूरी था होना. नहीं, परमेश्वर इसमें एक और बात सिखाया. यहाँ जो लिखा है ये हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 29 में, इसमें बहुत गहरी बात है. And today church must understand it. How we use the place, with what intention we use the place of God, the sanctuary of God. परमेश्वर के पवित्र स्थान को हम किस तरह से हम उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका यूज करते हैं. आपको मालूम है ये लोग, मिस्री लोग क्यों मर गए? केवल नहीं कि डूब गए, पानी आ गया, डूब के मर गए. नहीं, they were misusing the place which was holy. बाइबल बताती है आगे आगे क्या चलता था उनके. इस्राएली लोग सामने वो आर्क ऑफ कवनेंट था, है ना, वाचा का संदूक जिसको बोलते हैं. इट वॉज होली, इट वॉज होली व्हेन गॉड वॉज वॉकिंग विद देम. आगे लिखा है दिन में बादल का खंबा और रात में आग का खंबा बन जाता था, दीवार बन जाती थी. परमेश्वर उस जगह को, उस सूखी भूमि को, उस लाल समुंदर के अंदर के जमीन को, उसको भी पवित्र कर दिया. लेकिन ये लोग जो अपवित्र लोग हैं उसी में कूद गए विथ रॉन्ग इंटेंशन. उनका तो इंटेंशन ये था कि हम इनको मार दें, परमेश्वर के लोगों को खत्म कर दें. एंड टुडे मेनी टाइम्स द चर्च इज डूइंग द सेम थिंग. आई वांट टू टेल यू वेरी, लिसन केयरफुली. आज कलीसिया में भी कई बार ऐसे लोग आते हैं जो कलीसिया में बपतिस्मा लेना चाहते हैं या लेते हैं, या कलीसिया के मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन उनका इंटेंशन गलत होता है. उनका विचार, उनका जो नियत, एक शब्द बोलते हैं हम लोग ना, नियत जो है वो गलत होता है. शायद शादी के लिए मसीह हो जाए, बपतिस्मा ले लें,
शायद नौकरी पाने के लिए, आज इंडिया में बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, शायद हम ये हमारे लिए हो जाए, पढ़ाई हो जाए, हमको स्कॉलरशिप मिल जाए, हमको ये हो जाए तो हम चर्च के मेंबर बन जाए, विश्वासी हो जाए। लेकिन होता क्या है? बाइबल के अनुसार दिस इज रॉन्ग। बाइबल के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे लोग हमेशा पछताएंगे, हमेशा उनके लिए नुकसान होगा, हमेशा उनके लिए उनकी बर्बादी होगी और कुछ नहीं। और मैंने देखा है अपने जीवन में, अपने 50 years की मिनिस्ट्री में, आई हैव एक्सपीरियंस दिस। नेवर यूज द चर्च, नेवर यूज pulpit, never use the place where you are baptized for the wrong intention. It will be a curse for you and your family. और आज ये हो रहा है, it's going on in our church. I don't know about Fiji, but I know about India. I know about other countries also. People are misusing the sanctuary, the place, the holy place for their own intention. वो अपने लिए, अपने कुछ पाने के लिए, अपना शादी भी हो जाए, अपना नौकरी मिल जाए, अपना ये हो जाए, वो हो जाए, इसलिए आज गलत तरीके से वो चर्च में आते हैं या चर्च में मेंबरशिप लेते हैं। बी केयरफुल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, बी केयरफुल। परमेश्वर के जगह का गलत इस्तेमाल करना, ये पुलपिट का रॉन्ग यूज will always bring curse. It never brings blessings. कभी आशीष नहीं मिली तुम्हें, कभी आशीष नहीं मिली, और इसलिए बहुत सावधान होना है। बाइबल बताती डरते और कांपते हुए प्रभु के सन्मुख आओ। लिखा है ना बाइबल में, डरते और कांपते हुए प्रभु के सन्मुख आओ। हम लोग कितना डर लगे, हम तो चले आए एकदम सीना तान के चर्च में आए, पादरी हमें बैप्टिज्म दे दो, हमें तो ही करे क्या है, वो करे क्या। पादरी बोलता है क्या करे बेचारा, पास्टर भी क्या करे, वो तो दिल के अंदर झांक के नहीं देख सकता ना। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। He knows our past, He knows our present and He knows our future. वो सब कुछ जानता है। हमको बहुत सावधान होना है। The first thing I want to share with you to this incident, ये जो घटना हुई इस्राएलियों के साथ, पहली बात जो हुई है, we must remember the source of faith is God and God only. हमारे विश्वास का जो सोर्स है वो केवल और केवल हमारा परमेश्वर है, और कुछ नहीं हो सकता। हमारा प्रभु है, वो प्रभु जिसने मेरे और आपके लिए अपने प्राण को दे दिया, अपनी जान को दे दिया सलीब पर, वो प्रभु है। उसी एक्सोडस में अगर हम पढ़ें, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 19 and 28, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 19 and 28, वहां पर लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का खंभा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा खड़ा हुआ, जा ठहरा। कितना अजीब है ना, कितना अजीब है। परमेश्वर का उपाय, परमेश्वर का जो तरीका है ना काम करने का, वो हम लोग नहीं समझ सकते, इंसान के बुद्धि के बाहर है, बुद्धि के बाहर है। लेकिन वही तो फेथ है। परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे भी चलता रहा, लेकिन जहां प्रॉब्लम आएगी पीछे खड़ा हो गया। मेरे बेटा को कुछ होने न पाए, मेरी बेटी को कुछ होने न पाए। हमें याद है जब हमारा लड़का छोटा रहा, तुम्हारे बहुत से लोग हैं जब बेटा छोटा रहा तो वो साइकिल चलाना सीखता रहा, तो जब साइकिल चलाए तो हम उसके पीछे खड़ा हो जाए, ऐसे पकड़ के सीट पकड़ रहे, उसको मालूम नहीं होता रहा कि हम पकड़े हुए हैं।
हमें मालूम रहा कि वो ठीक से साइकिल चलाना नहीं जानता, वो गिर पड़ी। पक्का है कि वो गिर जाएगा, चोट खा जाएगा। हम उसको पीछे पीछे पकड़ देते रहे। जस्ट प्रोटेक्शन। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ही इज ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट यू, बट ही वांट्स टू सी योर फेथ। लिखा पीछे चला गया। पीछे काहे चला गया? आगे का तो उपाय कर दिया, वो उस समस्या से निकलने का उपाय कर दिया। समुंदर दो भाग हो गया। मूसा को छोटी सी लाठी जो रही उसमें इतना ताकत आ गया कि जैसी लाठी की ऐसे किया, समुंदर दो भाग हो गया। लेकिन पीछे तो एक बड़ी सेना है, एक बड़ा आर्मी है। परमेश्वर अपने लोगों को बचाना जानता है। पीछे मुड़ के ना देखो। जानते हो पीछे जो बादल का खंबा चला गया, उसके पीछे दो कारण। एक कारण तो है कि उस सेना के लोग नहीं देख पा रहे कि इस्राएली लोग कहाँ हैं। दे आर नॉट एबल टू सी गॉड्स पीपल। बट अनदर रीजन इज द गॉड्स पीपल आर नॉट एबल टू सी द प्रॉब्लम। हालेलुया। एक तो यह है कि वो जो दुश्मन लोग हैं वो लोग परमेश्वर के लोगों को नहीं देख पा रहे। लेकिन दूसरा कारण यह है कि अब परमेश्वर के लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा, अब तो उनको परमेश्वर का उपाय दिखाई दे रहा है। मेनी टाइम्स गॉड ओपन्स डोर फॉर अस। कई बार परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल देता है, हमारे लिए समस्या से हमको छुटकारा देता है। फिर भी हम लोग पीछे मुड़ के देखें, फिर भी हम लोग बात करते हैं, फिर भी वही पुराना बात करते हैं। अरे हम ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, हम तो हमारे साथ ऐसा हो गया था, ऐसा वैसा हो गया था। काहे याद करते हैं? याद करने की जरूरत नहीं है। आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता तुम अब उस प्रॉब्लम का जिक्र करो जो बीत गया। परमेश्वर तो यह दिखा रहा है तुम्हारे लिए एक नया रास्ता खोल दिया है, तुम्हारे प्रॉब्लम से हमने छुटकारा दे दिया है। ही इज द सोर्स ऑफ योर फेथ। ही इज द सोर्स ऑफ योर फेथ। तुम खाली परमेश्वर पीछे मुड़ोगे तब भी परमेश्वर दिखाई देगा, आगे तो है ही तुम्हारे लिए परमेश्वर। हर तरफ परमेश्वर ही दिखाई देगा। मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे लोगों, क्या हम परमेश्वर को देख रहे हैं कि खाली रोज सुबह उठते ही से शाम तक, जब नींद खुले और जब सोने जाए तब तक वही प्रॉब्लम का जिक्र करते हैं? स्टॉप, बंद कर दीजिए। अगर परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है तो प्रभु के लिए आगे बढ़िए, प्रभु आपको संभालेगा। दूसरी बात जो यह है, द सीक्रेट ऑफ फेथ इज टू फियर नॉट अफियर एंड स्टैंड स्टिल। जो दूसरी बात है वो ये है कि हमको डरना नहीं है, फियर नॉट। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने हमको फियर का स्पिरिट नहीं दिया है, हमें डर का, भय की आत्मा नहीं दी है। यही शब्द है बाइबल में। परमेश्वर ने हमको जयवंत से बढ़कर बनाया है। वी आर मोर देन कॉन्करर्स इन जीसस क्राइस्ट। इन जीसस क्राइस्ट He has made us more than conquerors. Just stand still and see what He is going to do. Isaiah chapter 40 and verse 31. Isaiah chapter 40 and verse 31. वहाँ हम पढ़ते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, but those who wait on the Lord. वेट मतलब क्या है? खड़े होकर वेट करना। जब आप किसी का, मान लीजिए मार्केट में किसी का वेट कर रहे हैं, अपने कोई फ्रेंड का वेट कर रहे हैं, तो उसको बताते हम इस जगह में हैं, यहाँ खड़े हैं। तुम वहीं खड़े रहोगे, वहां भागेगा नहीं इधर उधर। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ अभी यहाँ हो फिर वहां चले गए, फिर उधर चले गए और कहोगे हम वेट कर रहे हैं। नहीं, वेट करने का मतलब है यू विल स्टैंड स्टिल वन प्लेस टिल योर फ्रेंड विल कम। जो यहोवा की बाट जो होते हैं नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। They will receive new strength. इसीलिए बाइबल में यहां पर हमने पढ़ा, यहां पर लिखा हुआ है, मूसा ने कहा खड़े हो जाओ, चुपचाप रहो, that will give you strength. वो तुम्हें ताकत देगा। दिखावे उकाब की नाई उड़ेंगे, दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, कभी नहीं थकेंगे।
गॉड विल गिव यू स्ट्रेंथ. परमेश्वर तुम्हें ताकत देगा, सामर्थ देगा. आज प्रभु मेरे आपके जीवन से यही चाहता है. तीसरी जो बात है, फेथ सक्सेस इज फाउंड इन गोइंग फॉरवर्ड एंड इन द लॉर्ड्स फाइटिंग फॉर यू. विश्वास का मतलब है जब हम आगे बढ़ते हैं विश्वास से, और परमेश्वर के काम को हम अपने जीवन में देखते हैं. उसी एक्सोडस 13 में देखिए, एक्सोडस 13 एंड वर्स 13 से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, एक्सोडस 14 वर्स 13 से, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा. Moses saying, Lord will do work for you. Lord will do the work for you. The work of salvation is not the man. मूसा ही नहीं बोला हम करेंगे, देखो अभी हम क्या करके दिखाते हैं तुमको. कई बार हम लोग जब थोड़ा सा प्रभु में आगे बढ़े तो हम सोचते हैं हम किए हैं, मैं किया हूं, है ना. कई जगह ऐसा होता है. कई जगह हमारे वहाँ भी बहुत बार लोग कहते हैं, पादरी साहब मैं गया, मैंने प्रार्थना किया, वो चंगा हो गया, मैंने ये किया. अरे तुम कौन होते हो करने वाले? नो. द वर्क इज डन बाय गॉड. नेवर से आई हैव डन इट. आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट. Moses never said, I have done. Just stand and see what I'm going to do. I'm going to talk to God and come back and see what I'm going to do. No, Moses never said that. He said, just stand and see what God is going to do. The work of salvation. उद्धार का काम परमेश्वर यहोवा करेगा. सिर्फ तुम खड़े हो जाओ और देखो उसके बड़े काम को. मेरे भाई बहन, परमेश्वर आज भी वही प्रभु है. He is the same God. He is same God. We are not believing in any other God. और कोई उसका जनरेशन नहीं है जो चलाया उसको फिर हम उसको मान रहे. नहीं, हम उसी परमेश्वर को मानते हैं जिसने इस्राएलियों को इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा दिया. We believe in the same God who has given victory over this problem. By faith. By faith. Bible says in Matthew 7:7 we read, God go forward for prayer. परमेश्वर के लिए हम प्रार्थना में बढ़ते चले जाएं, प्रार्थना में आगे बढ़ें. और ये जरूरी कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए आगे बढ़ता जाए. आगे जब हम पढ़ते हैं Matthew 3 and verse 10, सब वर्ष हम लोग नहीं देख रहे हैं, आप बाद में स्टडी कर सकते हैं. मैं Matthew 3 and verse 10, भंडारीपन में स्टुअर्डशिप में हम बढ़ते चले जाएं. बाइबल बड़ा साफ कहती है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट डाला जाता और आग में झोंका जाता है. हम अच्छा फल लाने वाले बने. bear good fruit. ऐसा फल जो अच्छा हो, तब परमेश्वर हमको आशीष देगा. हम न केवल आगे बढ़े इवेंजलिज्म में, प्रचार में आगे बढ़ते जाएं. मैथ्यू चैप्टर 4 and verse 19, परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाने में लिखा, और उन्होंने उनसे कहा, मेरे पीछे चला, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा. I'll make you fishers of man. You just follow me. Jesus never said, I will do the work. No, you have to do. I have to do. हम लोग काम करना है, लेकिन किसका काम? परमेश्वर का काम. परमेश्वर के लिए प्रचार करना है, उसके बारे में बताना, ये हमारा काम है. हमको आगे बढ़ना है, शर्माने की जरूरत नहीं. बाइबल ये बताए हमको और अधिक परमेश्वर के काम के लिए और अधिक आगे बढ़ते जाना है. परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, प्रभु के वचन को जानने में बढ़ते जाना है, प्रार्थना करने में बढ़ते जाना. बाइबल में सब बात लिखी हुई, हमें आगे आगे को बढ़ते जाना है. मूसा एक बात कहता है, द बैटल इज द लॉर्ड.
लड़ाई परमेश्वर का है। तुम्हारा जीवन अगर तुमने प्रभु को ग्रहण किया है, इफ यू हैव एक्सेप्टेड जीसस क्राइस्ट एज योर पर्सनल सेवियर एंड यू बिलीव दैट योर लाइफ इज इन हिज हैंड, तो हमेशा जानो जो प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो या करोगे वो तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होगा, वो परमेश्वर का प्रॉब्लम बन जाएगा। He will take care of that. He only wants to see a big faith in you. वो केवल तुम्हारे अंदर एक बड़ा विश्वास देखना चाहता है, छोटा मोटा नहीं, इतना बड़ा नहीं, मस्टर्ड सीड वाला नहीं। He wants to see a big faith in you. और जब बड़ा विश्वास तुम्हारे अंदर होगा, परमेश्वर आशीष देगा। आगे जो हम पढ़ते हैं तो कहे कि हम खत्म करना चाहते हैं, एक्सोडस 15 और चैप्टर 15 एंड वर्स 1 से जब आगे पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है the people of Israel, they sang for the Lord. And believe me, faith's song is unto the Lord. हमें परमेश्वर के लिए गीत गाना है, हमें परमेश्वर की स्तुति करना है। कितना अच्छा लगा जब ये जवान बच्चे लोग, हमारे बेटे बेटी लोग कितना अच्छे तरह से प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। It was so good. आज जरूरत है हम प्रभु के लिए गाएं, प्रभु की महिमा करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं, प्रभु को आदर दें। And when you give honor to God, He will give you honor to you. अभी पाम संडे हम लोग मनाए, लिखा है बाइबल में, प्रभु जी गधी के बच्चे पर बैठ गए। याद आ गया, पाम संडे मनाया है ना, डंकी, और डंकी पर बैठ गए, है ना डंकी पर बैठे, डंकी पे, है ना। वो डंकी पर बैठ गए तो उस पर क्या हुआ, कभी सोचा उसको? आगे आगे लोग कपड़ा बिछाया है, फूल बिछाया है, पत्ती बिछाया है, सब कुछ सुंदर सुंदर चीज आगे आगे। चल कौन रहा था? यीशु मसीह नहीं चल रहा था उस पर, वो गधी का बच्चा चला था है कि नहीं? वो गधी का बच्चा चल रहा बड़े शान से, काहे? यीशु मसीह बैठा है उसके ऊपर। जीसस इज सिटिंग ऑन हिम। जब प्रभु तुम्हारे जीवन में है तो केवल प्रभु को ऑनर नहीं मिलेगा, हमारे तुम्हारे जैसे गधी के बच्चे को भी मिलेगा हम लोग उससे कम नहीं है। बाइबल कहते ना, जगत के मूर्खों को चुन लिया, कमजोरों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे, बाइबल में लिखा ना। तो हम तो मूर्ख है, वो ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं दुनिया में, शायद nobody knows us, but God will give us honor. Amen. He will give us honor. Praise God. परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। ऐसा होने दे कि हम और तुम और अधिक प्रभु के लिए बढ़ते चले जाएं, प्रभु की महिमा हमारे तुम्हारे जीवन से हो सके। आखिर का मैं एक वर्ष जो पढ़ करके ख़त्म करना चाहता हूँ, 1 Corinthians chapter 15 and verse 57। 1 Corinthians chapter 15। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। We thank God who gives us victory by Jesus Christ। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। Tonight is the time when you should come with any problem you have. You can come to Jesus Christ. Say, Lord, हम बहुत हल्ला मचाया, बहुत इधर उधर भागा, हम बहुत भागे इधर उधर, ये कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई हमारे लिए कर दे, कुछ नहीं हुआ। आज हम तुम्हारे पास आते हैं, चुपचाप तुम्हारे सामने खड़े होते हैं, क्योंकि हमको मालूम है तुम्हारे लिए कोई बात इम्पॉसिबल नहीं है। You will give me victory because you are the Lord God Almighty. You are my God. Amen. प्रभु तुम्हें आशीष दे। Let us close our eyes and pray. प्रभु जी, हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं तुम्हारे वचन के लिए जो हमसे बोलता और बातचीत करता है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज तुम हमारे अंदर उस विश्वास को देखना चाहते हो, वो विश्वास जो बड़ा विश्वास है,
जो मूसा के अंदर था। प्रभु हमारी प्रार्थना है, हमारे विश्वास को और बड़ा बनाओ ताकि हमारा भरोसा केवल तुम्हारे ऊपर हो, तुम्हारे ऊपर हो, दुनिया की ओर नहीं, संसार की बातों की ओर नहीं, संसार के लोगों की ओर नहीं, संसार की चीज़ों की ओर नहीं, लेकिन केवल और केवल यीशु मसीह पर हमारा विश्वास हो। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की जय। क्यों नहीं हम सब खड़े हो जाए इस समय। बहुत सुंदर सा वचन आज हमारे बीच में आया विश्वास के विषय में। शायद हम यहाँ पे हैं, शायद आज जब भाई वचन लेकर आया, शायद हमारे दिल में आया कि लॉर्ड आई वांट टू मेक अ रिकमिटमेंट फॉर यू। शायद तुम यहाँ पे पहली बार आया और शायद आप सोचता है कि I want to take this Lord as my Savior. You can come in front. We'll pray for you. There are people here who will pray for you. नहीं तो आप अपने हाथ को उठा सकते हो। Someone will come and stand beside you and pray with you. But ये जो मौका है इसको खोना नहीं। If something inside you is saying you need that commitment, just open your heart and listen to the voice of the Holy Spirit. क्योंकि आज सबसे उत्तम चीज ये है कि प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। That Jesus loves you and you are precious to Him. Thank you, Lord. Thank you, my Savior. Thank you, Lord. एक गीत को हम गाए, just a small worship song. Just allow the Holy Spirit to speak to you. Maybe you've been playing with your life. You've never really seriously serve the Lord. Today can be the time that you can start. In these 4 days, the Lord will lift you up. Thank you, Jesus. यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह, यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा, मुश्किल समय में
Yes, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Savior. क्यों नहीं हम धन्यवाद दे? Oh, hallelujah, hallelujah. तू आदर की योग्य है प्रभु, तू महिमा की योग्य है, तू स्तुति की योग्य है, तू हर एक प्रशंसा की योग्य है। और आज प्रभु हम तुम्हारे बच्चे परमेश्वर, तुम्हारे सामने खड़े परमेश्वर, तुम्हारे आराधना को हम करते परमेश्वर, क्योंकि हमने तुम्हारे महिमा को देखा परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे जीवनों को छुआ है, क्योंकि तूने हमें पुकारा है परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सुंदर सा वचन जो आज हमारे बीच में आया, धन्यवाद वो उत्साहित का वचन परमेश्वर, जो विश्वास के विषय में बताया। आज हम यही विनती करते परमेश्वर कि ये वचन हमारे जीवन के एक भाग हो जाए, कि प्रभु हम दौड़े नहीं, हम परेशानी में नहीं हुए, हम खड़े रहे परमेश्वर और तुम्हारे महिमा को देख सके परमेश्वर। Lord, help us that we will not run here and there, but we will trust in you, Lord, that we will look unto you as our Redeemer, that we will look unto you as our Savior, that we will keep our faith in you, O Lord, क्योंकि तू हमें कभी छोड़ेगा नहीं, तू कभी त्यागेगा नहीं। ये तुम्हारा वचन है प्रभु, जो तू हमें वादा को किया कि तू कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं परमेश्वर। और आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विनती करता हूँ उन लोगों के लिए जो आज हमारे बीच में है, शायद पवित्र आत्मा तू उनसे बातचीत को किया कि आज वो अपने निर्णय को बनाए। ए अब्बा पिता, आज हम विनती करते प्रभु, जैसे वो शायद सोचते हैं वो क्या करेंगे, आज मैं विनती करता हूँ हम सब मिलकर करते हैं कि प्रभु वो सही डिसीजन को आज बनाए, कि वो आज परमेश्वर वो निर्णय को बनाएगा कि वो तुम्हारे साथ चलेगा परमेश्वर, वो तुम्हारे हाथ को थामेगा परमेश्वर, वो तुझे अपने फायदा के लिए नहीं लेगा, लेकिन वो तुझे अपने जीवन में लेगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता परमेश्वर, क्योंकि तू उनके लिए बहुमूल्य है परमेश्वर, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे प्रेम को अपने जीवन में महसूस किया परमेश्वर। हे अब्बा पिता, आज मैं विनती करता हूँ प्रभु, जितने लोग आज सुनते हैं परमेश्वर, शायद वो ऑनलाइन सुनते हैं परमेश्वर, और शायद वो पहली बार परमेश्वर ये वचन को सुना, आज हम विनती करते हैं पवित्र आत्मा तू उनसे बातचीत को कर कि आज जैसे वो जो भी जगह पर है वो सही निर्णय को बना सके प्रभु, जैसे वो अपने जीवन को तुम्हारे हाथ में अर्पण करते हैं। आज हम विनती करते प्रभु, तू आ, वो जगह पर आ, उनके जीवन में आ, तू छू ले उन्हें परमेश्वर, कि आज से परमेश्वर वो तुम्हारे प्रेम को महसूस करे और वो जाने कि तू उनसे प्रेम करता है। धन्यवाद भाई के लिए जो वचन को लेकर आया परमेश्वर, धन्यवाद जितने लोग आज हमारे बीच में परमेश्वर, तुम्हारे आशीष हम सब पर बहुत आज से रहे। विनती करता हूँ कल के सर्विस के लिए प्रभु, यही विनती करता हूँ तू अच्छा मौसम को देगा, मदद करना, जितने लोग आए परमेश्वर वो आशीष को पाए, पवित्र आत्मा तू उन्हें तैयार कर देना कि जब वो आए प्रभु, जो उन्हें पाना है वो उसको पाकर जा सके। पिताजी, आज के सभा को, सब लोगों को तुम्हारे पवित्र सुंदर हाथों में अर्पण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। क्यों नहीं हम जोरदार ताली को बजाए परमेश्वर के लिए, आमीन। इस समय हम सब बैठ जाए। याद करना कल सुबह 8:30 डिवोशन रहेगा, 9 से 10 सेशन 1 रहेगा, 10:30 से 11:30 सेशन 2 रहेगा, और कल इवनिंग का जो सर्विस है वो शुरू होगा 6 PM, प्रीलिमिनरीज, और फिर प्रेयर फॉर द यूथ, कल यूथ का है, और कल का जो थीम है वो है बुलावेया। इवनिंग सर्विस का जो थीम है वो बुलावेया है। यूथ रिवाइवल सर्विस रहेगा जिसमें सब यूथ्स पार्टिसिपेट करेगा। जितने यूथ्स को आप बुला सकते हैं सर्विस में बुलाना, आमीन, ताकि जब यूथ्स आए परमेश्वर उनके जीवन को छू सके।
आमीन। तो याद करना कल सुबह 8:30 डिवोशन से शुरू होगा और परमेश्वर सबको आशीष दे। अगर आप प्रार्थना चाहता है, आप बीमार है, आप आगे आ सकते हो, तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर बहुत अच्छे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।